أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. प्यारे बच्चों, तमाम लोग आज कैसे हैं? गुज़रा हुआ सबक सब अच्छे से पढ़े थे। हम किसके बारे में बोल रहे थे? किसके बारे में? हाँ, सब लोग जिस दिन पढ़ाते हैं रात में दोबारा पढ़ना चाहिए। सब लोग पढ़े थे, वही हमको आदत बनाना है। ठीक है, तो खर्च करने के बारे में बोल रहे थे। हमारे माल का सब असल मालिक कौन थे? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हम उनका उसमें वकील है और अच्छे नेक अमाल में वो खर्च करना चाहिए। दूसरों को भी मुहताज ज़रूरतमंद लोग को उसमें हक़ है, वो सब हम बता चुके हैं। और माल खर्च करना चाहिए, जमा करके वहाँ पकड़ के रखना हरगिज़ नहीं करना चाहिए, वो सब पढ़े थे। और आखिर में मफरूज़ ज़कात के बारे में और मसनून सदका करने के बारे में भी हम बोल के ख़त्म किए थे। तो आज उसका बाकी हम पढ़ते हैं। देखिए पेज नंबर 34 आखिरी लाइन में, अल्लाह ताला अपने फजल से दिए हुए माल से कंजूसी दिखाने वाले हरगिज़ नहीं समझना कि वो उनका भला होगा, उससे उनको नुकसान पहुंचता है। गौर से समझिए कि अल्लाह ताला हमको माल दिया है, ये माल अता किया है खुदा ताला। तो ये माल से हमारे पास जो पैसा है, माल है, उसको पकड़ के रखना, कंजूसी से जमा करके रखना। इसे हम कल पढ़े थे, अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददा यहसबु अन्न मालहु अखलदा। ऐसे लोग जो पैसा गिन गिन के जमा करके रखते हैं और वो सोचते हैं कि ये पैसा की वजह से हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये पैसा जमा करने से हमको फ़ायदा है, ऐसा समझने वालों को ख़राबी है, नुकसान है, वही बात बताते हैं। तो ये पैसा जो अल्लाह ताला दिया है असल में, उसको जमा करके कंजूसी दिखाने वाले कंजूस लोग जो किसी को देते नहीं और खर्च करने में भी बहुत कम करते हैं, बस ज़रूरतमंद चीज़ों में खर्च करते हैं, ऐसे लोग ज़रूरतमंद चीज़ों में भी कम खर्च करते हैं, ऐसे लोग जो आमतौर पर हम कंजूस कहते हैं, बुलाते हैं। तो कंजूसी करने वाले हरगिज़ ये समझना नहीं, ये सिफत, ये खुलुक, कंजूसी उनके लिए बला है, भलाई है, ये समझना नहीं चाहिए। वो समझ
غلطی ہے، وہ غلط فہمی ہے، اصل میں وہ اس سے ان کو نقصان پہنچتا ہے۔ بغیر خرچ کر کے جمع کرنے سے وہ مال میں نقصان پہنچتا ہے، مطلب وہ کنجوسی دکھانے سے وہ مال کا اس کی برکت ضائع ہو جاتا ہے اور اس سے پیسہ مال گھٹا ہونے کا بھی گنجائش ہے، سمجھیں؟ ہاں، زیادہ خرچ کرنے سے ہمارے مال و دولت میں زیادگی بڑھائی ہوتی ہے۔ ہم پڑھے تھے خرچ کرنے سے مال زیادہ ہوتا ہے، بنا خرچ جمع کرنے سے اس سے نقصان پہنچنے کا چانس ہے، سمجھیں؟ ہاں، اور آگے کنجوسی سے بچا کے رکھے ہوئے اس کے یہ پیسوں سے قیامت کے دن اس کو گلے میں مالا ہار بنا کر پہنایا جائے گا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے، قرآن میں آیت ہے، وہ کنجوسی سے پیسہ جمع کر کے رکھنے سے کبھی بھی اس کو فائدہ نہیں ہے، وہ اس کے لیے برائی ہے۔ سورہ آل عمران 3 سورت کا آیت نمبر 180، اس کی تشریح میں ہم کو یہ دیکھ سکتے ہیں، وہ آیت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ اس کا فضل و کرم سے جو پیسہ مال و دولت دیا ہے اس سے کنجوسی کرنے والے لا يحسبن، ایسے نہیں سمجھے، ایسے گمان نہیں کرے کہ هو خیر لہم، یہ ان کے لیے بلائی ہے، ایسا سوچنا نہیں چاہیے۔ بل هو شر لہم، اصل میں قرآن کا اعلان ہے کنجوسی کرنے سے وہ ان کو نقصان ہے، ان کے لیے برائی ہے۔ سیطوقون، طوق بولے تو ہار ہے، مالا، نیکلیس، سیطوقون ما بخلوا بہ، جسے وہ کنجوسی کر رہے تھے وہ مال سے، وہ ان کو ہار ہو کر پہنایا جائے گا یوم القیامت، قیامت کا دن۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کو ہے یہ دنیا اور آسمان کے سارے مال و دولت، اور ہم اور تم جو خرچ کرتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، وہ سب سے زیادہ جاننے والا اللہ ہوتا ہے۔ تو یہ آیت میں ارشاد ہے، جو کنجوسی کر کے پیسہ جمع کر کے بچا کے رکھتا ہے وہ اس کے لیے فائدہ نہیں ہے، وہ بے فائدہ ہے، بلکہ اس کے لیے نقصان ہے۔ قیامت کے دن ایک عذاب کے جیسے اس کے گلے میں ہار ہو کر پہنایا جائے گا، وہ بے فائدہ ہے، اس کے لیے کوئی کام میں نہیں آئے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان کا فرمان ہے، صدقہ رب کے غصے کو توڑ کر پھینکنے کے ساتھ بری موت سے بچائے گا بھی۔ صدقہ دینے سے خدا کا غصہ اسے توڑ دیتا ہے، پھینک دیتا ہے، اور بری موت سے ہم کو بچاتا ہے بھی۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء۔ سنن جامع ترمذی کی روایت ہے، ان الصدقۃ، بے شک صدقہ دینا، تطفئ غضب الرب، وہ خدا کا پروردگار کا غصے کو کم کرتا ہے، اصل معنی بجھانا ہے، جیسے آگ بجھاتا ہے۔
वतदफ़उ, ये सदका हटा देता है, दूर करता है, मीतत सूई, बुरी मौत से। हम हमेशा दुआ करते हैं हमारी खातिमा, आखिरी लम्हा सही अच्छा होने के लिए, तो सदका देने से उसको फ़ायदा है, समझें। और सखी जो सखावत करते हैं, ज़्यादा सदका देता है, वो अल्लाह जन्नत और इंसानों से करीब रहेगा, सारे लोग उनसे मोहब्बत रखेगा, प्यार रखेगा, और दोज़ख से दूर रहेगा। सखी सखावत से दोज़ख से दूरी पैदा होता है। उसके बरखिलाफ में कंजूस, जो कंजूसी करता है, वो अल्लाह, जन्नत और लोगों, ये तीनों से दूर रहेगा, करीब नहीं रहेगा, और उसके साथ साथ दोज़ख से करीब रहता है, जन्नत के अलावा। तो हम लोग कौन बनना है? सखी बनना है या कंजूस बनना है? हाँ, ज़रूर सखी बनना चाहिए। सही होने के लिए ज़्यादा पैसा जमा करना, ज़्यादा मालदार होना, वो भी ज़रूरत नहीं है। जो हमारे पास है वो खुशी से दूसरों को भी उसमें सदका देना, दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना, दूसरों के लिए खिदमत करना, खिदमत अंजाम देना, ये सब हम सबको कर सकते हैं, समझे। हाँ, और इसके साथ साथ ये भी समझने की बात है, गौर करने की बात है, हम जब खर्च करते हैं तो ये हरगिज़ ये नहीं समझना कि हमारे पास जितना माल है वो पूरे को पूरा दूसरों को देना, मुहताज लोग को देना, वैसा भी नहीं है। हमारी ज़रूरत चीज़ और हमारे अहलो ख़ानदान है जिसके ऊपर हमको नफ़का देना वाजिब है, उनको भी हम पैसा खर्च करना चाहिए, उसके आगे वाला सदका देना काफ़ी होगा। हम जब खर्च करते हैं उस वक्त एकदम कंजूसी करना वो भी मज़मूम है, मज़म्मत की बात है, और ज़्यादा पैसा बेकार चीज़ों में खर्च करना, पैसा ज़ाय करना या फजूल खर्च करना, वो भी बुरी बात है। तो एक बराबरी से हम पैसा या माल और दौलत सब खर्च करना चाहिए। कुरान में इरशाद है, वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वानश शयातीन व कानश शैतानु लिरब्बिही कफूरा। सूरा इसरा में, वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा, तुम लोग फजूल खर्च नहीं करना, इसराफ नहीं करना, ज़्यादा खर्च नहीं करना, क्योंकि इन्नल मुबज़्ज़िरीना, बेशक फजूल खर्च करने वाले, कानू इख़वान शयातीन, वो शैतान का, इबलीस का भाइयों का जैसा है। इबलीस की सिफत जो है, खुलुक जो है, वो हम हरगिज़ अपनाना नहीं है ना, वो सिफत से हम दूर रहना चाहिए। और वकान शैतान लिरब्बिही कफूरा, शैतान खुदा से नाफरमान है, कुफर दिखाने वाला है। तो फजूल खर्च करना भी नहीं है, कंजूसी करना भी नहीं है, एक बराबरी से खर्च करना चाहिए, समझे ना। ठीक है, अभी हम एक वाक़या पढ़ते हैं। आगे देखिए, एक मरतबा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, उनकी खिदमत में हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने 1,80,000 दिरहम देकर भेजा। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को सबको मालूम है ना, हाँ, उम्मुल मुमिनीन है। और हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हा, पढ़े हैं उनके बारे में तारीख़ में, जो खुलफा राशिदीन के बाद खलीफा थे। तो मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु जब खलीफा थे, अमीर थे, उस वक्त उम्मुल मुमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उनकी तरफ एक तोहफ़ा इनाम के तौर पर भेजा। उसमें कितना पैसा था? हाँ, पढ़िए, उसमें कितना दिरहम था?
दिरहम वो वहाँ का पैसा 1,80,000 दिरहम, बहुत ज़्यादा है ना। हाँ, तो ये इनाम आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की तरफ भेज दिया खलीफा मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु। तो फिर क्या हुआ, आयशा बीवी रज़ियल्लाहु अन्हा ने वो सब एक बड़ी बर्तन में रखकर लोगों में तकसीम कर दिए। लोगों को बीच में वो मुकम्मल तमाम दिरहम बांट दिए, तकसीम दिए, सदका दिए। शाम होने पर आयशा बीवी रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी बांदी से रोज़ा खोलने का खाना लाने के लिए कहा। रोज़ादार थी तो रोज़ा खोलने के लिए खाना मंगाया आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। तो अपनी बांदी से रोज़ा खोलने के लिए खाना मंगाया, खाना लाने के लिए इरशाद दिया। तो उस वक्त बांदी एक रोटी और ज़ैत लाई, रोटी और उसके साथ जो तेल है वो दोनों लाया और कहा, वो बांदी ने कह रही है, आपने जो पैसा लोगों में तकसीम करके दिया था, जो सुबह में मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु आपके बारगाह में ला के दिया था, आपके लिए भेज दिया था, वो पैसा जो आप लोगों के बीच में तकसीम करके दिया था, उनमें से कम 1 दिरहम से हमारे रोज़ा खोलने के लिए गोश्त लाने के लिए भी आपको नहीं सका। आप इरशाद नहीं दिए थे, आप हुक्म नहीं दिए थे, कम से कम 1 दिरहम तो हमारे लिए बचा के रख सकता था, लेकिन रखा नहीं है। पूरे का पूरा आप सदका दिए हैं, लोगों के ज़रूरतमंद लोग के बीच में तकसीम किए हैं, आपके लिए 1 दिरहम भी बचा के नहीं रखे। सुबहान अल्लाह। इसीलिए मैं रोटी और तेल ला रही हूँ, अभी भी गोश्त के लिए या अच्छा खाने के लिए कोई पैसा हमारे पास नहीं है। हालांकि आज का दिन में आपके पास ज़्यादा पैसा भी था, लेकिन कुछ भी आप वहाँ बचा के नहीं रखे थे, और या ख़ास खाना मंगाने के लिए भी नहीं महफूज रखा, और उसमें से 1 दिरहम भी नहीं बचा, आप ख़ास करके हुक्म नहीं दिए थे। तो ये सुनकर उस वक्त आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, अगर तो उस वक्त मुझे याद दिलाई थी तो मैं वो कर सकती थी। तुम भी याद नहीं दिलाई थी, हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं है, अगर याद दिलाया तो हमको उसके बारे में सोच सकते थे, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, परवाह नहीं है, हम अभी रोज़ा खोलेंगे रोटी और तेल से। कहानी समझे? तो इसी तरह सदका करने वाले थे हमारे असलाफ, सहाबाए किराम, उम्महातुल मुमिनीन सब। इस तरह हदीस में इरशाद है, हत्ता युनफ़िक़ यमीनहु, तो इस तरह से खर्च करने वाले थे, सदका देने वाले थे हमारे असलाफ, उम्महातुल मुमिनीन सब लोग। तो इसी से हमको भी सबक सीखने का है। उसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी माल व दौलत का काबू करना, उसका खर्च करने में हम भी खुद ब खुद तैयार हो जाना चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। आगे वाला हिस्सा अगले सबक में हम पढ़ते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, या रब्बि सल्लि अलैहि वसल्लिम।